کمیشن کے لوگ ہیں، 4 کمشنر حضرات ہیں، وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفیوں، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا. انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے. اور جب دستاویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ میں واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا، انہوں نے صرف 16.5 ارب روپے خرچ کیا. اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں، اور اس میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں. 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائیں. اس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں، جو میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بولا ہے کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے، یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے. اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحبان آئے ہیں، انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو میں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا، کہ پاکستان کی سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہے بدامنی کا، سیکیورٹی کا. لہٰذا حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور فل فور میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں، چاہے وہ ISI ہو، ملٹری انٹیلیجنس ہو، FIU ہو، اسپیشل برانچ ہو، انٹیلیجنس بیورو، سارے کے ساروں کو لائن حاضر کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہیں، بجائے وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں. اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں. ان کو ہدف اپنا چینج کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف جانا چاہیے. ایک سیکنڈ اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ زاہد جو SP سٹی کا آپریٹر ہے، اس کے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے کہ وہ ہم ساتھیوں کا ویڈیوز یہ لوگ کیوں بنا رہے تھے. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات ہم لوگ کریں گے پھر. میں اس موقع پہ دیکھیں جو بات ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب نے کہی کہ عمران خان کے اوپر جو ناجائز مقدمات بنائے گئے، جو عمران خان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے، ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے پاکستان کی ساورنٹی کی بات کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی جو دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے، پاکستان کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا نہیں، ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم کسی کی غلام نہیں ہیں. اس وجہ سے آج وہ جیل میں ہے. میں ایک اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، گور صاحب بھی ہے، یہ جو ہماری جو مسنگ پرسن کا کیس ہے اور خاص کر جو فوجی ٹرائل میں ہمارے کیسز ہو رہے ہیں اور جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے وہ بیچارے کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور انتہائی پریشان ہیں، اس میں جو سمیع وزیر ہے بنو سی، وہ بہت برے حال میں، اس کی جو ہے نا وہ بیماری کا حال میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کیس جلد از جلد فکس کیا جائے. چیف جسٹس جو ہے نا، میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے کہ فوری طور پر جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہو رہی تھی اور جو بینچ ٹوٹ گیا ہے، اس بینچ کو نیا کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور ان بچوں کو جو ناجائز طور پر آرمی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ان کا کیس سنا جائے.
बहुत शुक्रिया जी। जरताज गुल साहिबा पार्लियामेंट्री लीडर हमारी। एक मिनट, हम लोग क्वेश्चन भी कह रहे हैं, पहले इनकी बात सुन जी। बात टाइम आपके पास है भाई, इंतजार करें, उठाएं जी जी करें, वो कह रहे हैं माइक को जी जी करें करें करें। भाई जितना पकड़ लो जी 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 इसके बाद ठीक है कोई नहीं, आप बोलो, शुरू करें जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम जो भी आवाज़ अपने लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए उठाते हैं, पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। जो नेशनल चैनल है वो भी हमारी आवाज़ को बीप कर देता है। तो मैं आप जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया में उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हम अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करते हैं, आप भी खौफ के बुत तोड़ के हमारी बात आवाम तक पहुँचाते हैं। हमारे जितने भी आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक्स हमारे डिप्टी स्पीकर हमारे स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब हैं, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, हमारे चीफ विप साहिबान MWM हैं, सेनेटर साहिबान हैं, सब इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। सिर्फ हमारे MNAs पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि 25 करोड़ आवाम एक ही बात कर रहे हैं कि आपने उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो 8 फरवरी को आवाम की ताकत से मुंतखब हुए हैं, आपने उसको काल कोठरी में जो है वो अंदर किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आपकी उस शख्स से सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने उनके बेगम साहिबा बुशरा बीबी के ऊपर, हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपने खवातीन को पाबंद सलासल किया हुआ है। आज तमाम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे महबूब लीडर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। और दफ़ा 144 लगा देने से, टीवी पे आवाज़ पे बीप कर देने से, हमारा गला दबा देने से, चादर और चार दीवारी पामाल कर देने से यह आवाज़ नहीं उठेगी। आज मैं अपने लीडर इमरान खान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। क्या आप 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स का बहाना गिरा के मुल्क से नहीं भागे, बल्कि आप इस मुल्क का और हमारे मुस्तकबिल का आप जो है मुकदमा लड़ रहे हैं। और आप काल कोठरी के अंदर बैठ के फिर भी आईन और कानून की बालादस्ती की बात करें, तो हम बार बार आवाज़ और ये दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। साहब एक सवाल ले लें, आप इदारों की बेतौकीरी करते हैं और ये कहते हैं कि ये इदारे बेइख्तियार हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, और आपके लीडर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। नहीं जय देखे, पहली बात सुने, अच्छा पहली बात ये बताऊं, अच्छा एक मिनट आप नहीं समझते आपको देखे, नहीं देखो, हमने कभी नहीं कहा कि बेतौकीरी कम ने कर ली है कि आदलिया का, हम ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा है और हम ये कह रहे हैं कि सारे इदारे, और मैं अदलिया को कह रहा हूँ कि अदलिया जब अपनी फ़राइज़ अंजाम दही में नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं कि हम सड़कों पे आते हैं। देर से इंसाफ करना नाइंसाफ़ी है, और मैंने यही कहा है और हम यही कहते हैं और यही सच है कि 1 साल से केसेस पे केसेस हो रहे हैं, केस पे केस आ रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा केस हो रहा है। हम रिलीफ के लिए आते, वो रिलीफ नहीं मिलती, तो इसलिए हम सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामान में न कानून साजी हुई, न आवाज़ उठा, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। जी प्लीज़ आप वो हमारा काम। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। ये पकड़, ये सारी बैकअप है, अपने माइक खुद उतारो, सारी केबलें खुद से लो। ये किसके का फोन तो नहीं है, वो ये लोगों उतनी अपने माइक खुद उतारो सारे। ये पकड़ा दे, मेरा रिकॉर्ड से टाइम जरा चला यार, दो जेलों में है, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून, जेलों में है, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये सिर्फ लाकानूनियत नहीं, ये जुल्म नहीं, लेकिन वो याद रखेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की, जिसमें औरतों को बारहा बार अरेस्ट किया गया। एक अदालत इजाज़त देती है, बेल ग्रांट करती है
प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, सरकार को सुनने के बाद उस अदालत के ऑर्डर को ख़त्म किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जम्बट में गए थे कोर्ट में, अदालत से रिलीफ लेने के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और जाने नहीं दिया गया। इस लाकानूनियत के ख़िलाफ़ आज पार्लियामेंटेरियन बाहर असम्बली लगा के ये आवाज़ उठाती है। हम मुतालिबा करते हैं अदालतों से कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, 25 तारीख को भी खान साहब का केस लगा हुआ है, कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ खामोश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लोगों का आज ये पुरअमन रैली और एहतजाज हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। यहाँ पे साबका स्पीकर कौमी असम्बली मेरी दाएं तरफ पे, यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जरताज गुल साहिबा, हमारे चीफ विप, सारे MNAs हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर MWM हमारे साथ हैं, सेनेटर्स हजरात हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि हमारे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारी वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी आज सालगिरह भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे तैयबा राजा साहिबा जो रिलीज़ हो गई हैं, हमारी आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, हमारे चौधरी इजाज साहब सेनेटर साहब, मियाँ महमूद रशीद साहिब, उमर चीमा साहिब और हमारे हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, और 100 के करीब हमारे जो असीरान हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, हमारे असीरान हैं इस वक्त सरगोदा जेल में, मियाँ वाली जेल में, कोट लखपत जेल में। उनके लिए आज सॉलिडारिटी में हम लोग ये मार्च कर रहे हैं और हम लोग ये डिमांड करते हैं इस इलेक्शन कमीशन के सामने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफियों, क्योंकि उन्होंने अदालतों के सामने झूठ बोला था। उन्होंने उस वक्त इलेक्शन को डिले करने के लिए, उसको मुअख्खर करने के लिए कहा था कि उनके पास पूरा बजट नहीं है, और जब दस्तावेज़ात बजट की सामने आई और बजट स्पीच में वाज़े तौर पे मैंने बताया कि जो बजट इन्होंने मांगा था 46 अरब रुपए का, इन्होंने सिर्फ 16.5 अरब रुपए खर्च किया। इस इलेक्शन कमीशन का एक ही काम था कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, और उसमें भी वो नाकाम हुए हैं और हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी और हमारे मेंबरान तकरीबन 86 के करीब उन्होंने चोरी करके उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। और इसमें मैं एक अहम चीज़ बताता चलूँ, जो मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बोला है कि इस कौम को तरक्की करने के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पे माहौल पुरअमन होना चाहिए। और कल चीन के जो यहाँ पे जो मिनिस्टर साहिबान आए हैं, उन्होंने भी वाज़े तौर पे कहा है, और कौमी असम्बली में भी इसको मैंने आज पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान की CPEC को सबसे बड़ा ख़तरा लाहक है, वो आपका है बदअमनी का, सिक्योरिटी का। लिहाजा हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए। और फिलफोर मैंने डिमांड भी की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को जितनी हमारी हैं, चाहे वो ISI हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, FIU हो, स्पेशल ब्रांच हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारे के सारों को लाइन हाजिर करना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और ये क्यों हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपना फ़र्ज पूरा नहीं कर रही हैं, बजाय वो दहशत गर्दों के पीछे जाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں، اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف